next topic. Earlier we have studied with the evidences of evolution, the different type of evidences, the different theories of origin of life. Now today we'll start with the theories of evolution of life. Okay, earlier we have studied about the theories of, don't get confused, जो हमने पहले पढ़ी थी, that are the theories of origin of life. Now we will study about the different theories of evolution. Okay, theories of evolution. So that include four type of theories are there, and that theories are very very important. Many time questions are asked regarding these theories in the exam, so just learn it carefully and listen carefully. Now number of theories are there, four important theories are there that we will discuss, and we have to study about their postulates also, their criticism also, their favors, the evidences against their favor and against it, and in favor of it. Okay, so all the things we have to study. So first of all उसने कहा है कि time to time in number of hypothesis, voice is audible? Yes, ma'am. Okay, so just listen carefully. These theories are very very easy. ठीक है, theories बहुत ज़्यादा easy है, just try to understand. From time to time number of hypotheses have been put forward to explain the mechanism. जो evolution का mechanism था उसको explain करने के लिए time to time number of theories were put forward, and to explain the mechanism that which large number of species of plant and animal emerge on the face of earth. जो large species है plants की और animals की, उनकी जो evolution हुई है उस चीज को explain के लिए बड़ी सारी theories जो थी time to time आई थी. But thing is that most of these theories lack scientific explanation. अब इन theories में क्या था कि because these are the theories ना, तो इनमें scientific explanation नहीं थी. That's why these theories were discarded. Okay, तो मैंने जो mostly जो theories थी वो क्या हो गई, discarded हो गई, because they don't have the scientific explanations. So बड़ी सारी theories थी, but जो important theories हैं उसका following account four modern theories have been put forward. Four modern theories हैं to explain the mode of evolution or to explain the origin of species. Now just remember what we are studying. We are studying the mode of evolution, हम evolution को पढ़ रहे हैं, and also we are studying the origin of species, how origin of species takes place. Okay, now so four theories are there. First one is the Lamarck's theory of inheritance of acquired trait. Okay, and that is also called as a Lamarckism. Okay, so first one is the Lamarckism theory of Lamarck's theory of inheritance of acquired trait, that is also called as the Lamarckism. Second one is the Darwin's theory, don't forget the name. Second one is the Darwin's theory. Third one is the mutation theory of Hugo de Vries. ठीक है, mutation theory थी of Hugo de Vries. And last one is the modern concept of evolution. So all the four theories we have to study in this topic. Now just look into the picture. Is this picture visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, okay, first theory is the Lamarckism. It is also called as a theory of inheritance of acquired traits, and it is given by the Lamarck. The full name is Jean Baptiste de Lamarck in the year 1809. And इसने जो अपनी ये theory थी, he explained his theory in a book that is a philosophic zoologic. जो इस book में उसने just remember the name of the book, that is a philosophic zoologic, जो उसने book दी थी, उस book में उसने अपनी इस theory को explain किया था. Okay, now we have to study the different postulates of theory. This theory सबसे easy और सबसे important theory है. Now four postulates are there. First one is the new needs, use and disuse of organs, then inheritance of acquired traits. और इन तीनों की वजह से end में क्या होगा, there is a formation of species. Now we have to study कि new needs क्या हैं, use and disuse of organs क्या है, and inheritance of acquired trait. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यू नीड्स. उसने क्या है, इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग होता है, एग्रीगेशन ऑफ एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं, एक्सटर्नल सबस्टांसेस एंड थिंग्स व्हिच अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन्वायरमेंट मीन कोई भी चीज जो अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को. सो उसने कहा वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर उसके इन्वायरमेंट में वेरिएशन आती है, सो देयर इज अ इट क्रिएट्स अ न्यू नीड फॉर अडेप्टिंग टू द चेंज. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इन्वायरमेंट में वेरिएशन आएगी, ठीक है, सपोज इन्वायरमेंट में फूड नहीं है, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनिज्म को कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, या उसको माइग्रेशन करनी पड़ेगी, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएगा, या कुछ तो कुछ उसको करना पड़ेगा. उसने क्या, सो वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर एक इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में अगर वेरिएशन आती है, तो उसको इट क्रिएट्स अ न्यू नीड.
वो उसकी न्यू नीड क्रिएट करता है. सो फॉर अडेप्टिंग टू द चेंज एल्स इट विल नॉट सर्वाइव. अगर उसको चेंज को अडेप्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली ना सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है. सो उसने कहा ऑर्गेनिज्म फिर क्या करता है, हैज टू पुट एन एफर्ट्स टू फुलफिल इट्स नीड ऑफ अडेप्टेशंस. तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एफर्ट्स लगाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. ओके. सो उसने कहा टू फुलफिल दीज न्यू नीड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू पुट फॉरवर्ड which result in change in habitat and habit of the organism. उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने एफर्ट्स लगाएगा. एफर्ट्स लगाने का मतलब क्या है कि उसमें उसके हैबिट में चेंज होगा और उसके हैबिटेट में डेफिनेटली कुछ तो चेंज करेगा, अपनी हैबिट चेंज करेगा या अपना हैबिटेट चेंज करेगा. ओनली देन इट विल सर्वाइव, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव. ओके. सो दिस इज द न्यू नीड. बट डोंट वरी, जब आप एग्जांपल्स पढ़ोगे तो देन दिस टॉपिक विल बिकम क्लियर टू यू. Now second one is the use and disuse of organ. The new habit, जो न्यू हैबिट होती है उससे क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्ट देयर फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग. एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो ऑर्गन है उसकी फॉर्म को, स्ट्रक्चर को और मोड की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है यूज एंड डिसयूज. मतलब उसने कहा कि कुछ भी ऑर्गन है, अगर एक ऑर्गन उसको ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, लेस यूज कर रहे हो तो वो रिड्यूस होता जाएगा. ओके. सो उसने कहा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द ऑर्गन टू कोप विद द इन्वायरमेंटल. अगर उसने कहा कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द ऑर्गन टू कोप विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ रहने के लिए अगर एक ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गन का कॉन्टिन्यूस यूज करता है, देन दिस ऑर्गन बिकम एक्टिव एंड मेक्स देम लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन का बार बार यूज कर रहा है, उसको अच्छे से यूज कर रहा है, तो वो ऑर्गन क्या होगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा एंड मोर एफिशिएंट टू डू द वर्क. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज दैट continued disuse of organ. अगर किसी ऑर्गन को यूज ही नहीं कर रहे हो, ग्रेजुअली मेक्स देम वीकर एंड स्मॉलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक ऑर्गन को ज्यादा यूज कर रहे हो तो इट बिकम स्ट्रॉन्ग, इट बिकम लार्ज एंड बिकम मोर एफिशिएंट. बट अगर उसको यूज नहीं कर रहे हो तो दैट इट बिकम्स वीकर एंड स्मॉलर, सो दैट दे एक टाइम पे आके फाइनली वो डिसअपियर हो जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एवरीवन. Okay. Yes, ये इसको ma'am. just listen carefully. When you see the example, then topics become clear to you. Then you are having the inheritance of acquired traits. अब ये these points are related. Okay, you can't write the inheritance को पहले लिख लोगे, use को बाद में. These are interrelated and you have to write it in a sequence. First one is the new need. न्यू नीड की वजह से क्या हुआ, उसने किसी ऑर्गन को यूज किया, अगर उसको यूज और डिसयूज हुआ न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग. देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स. उसने कहा द चेंजेस ब्रॉट बाय the changes acquired by individual through use and disuse of organ और उसके and through environmental influences are transmitted by heredity to the next generation. Okay, so just listen. The changes acquired by an organism, एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल जो भी चेंजेस लेता है इन्वायरमेंट से थ्रू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्रू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इन्वायरमेंट की वजह से भी और किसी ऑर्गन को यूज करने से, या उसको अगर उसको यूज करेगा तो भी चेंज आएगा, डिसयूज करेगा तो भी चेंज आएगा. सो द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गन इंडिविजुअल थ्रू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्रू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस से भी आर ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो उसने कहा है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. मतलब सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप अपने लाइफ टाइम में जो भी चीजें एक्वायर करते हो, जो भी आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में इफ दे आर यूजफुल. ओके. सो उसने कहा अब देखो, इन एवरी जनरेशन फ्रेश कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड. हर जनरेशन में उसने कहा फ्रेश कैरेक्टर्स मिलते जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को. एंड एट लास्ट व्हाट विल हैपन विद द रिजल्ट आफ्टर a number of generations the variation accumulate to extent. उसने कहा नंबर ऑफ जनरेशन, क्योंकि हर जनरेशन में उसने वेरिएशन आई, हर जनरेशन में उसने एक्वायर्ड किया ट्रेट. तो एट लास्ट फाइनली जाके द वेरिएशन एक्यूमुलेट टू द एक्सटेंट दैट स्पीसीज मॉडिफाइड इनटू अ न्यू वन. तो उससे एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज. सो थिंग इज दैट कि न्यू नीड्स, then use and disuse of organ, inheritance of acquired trait, and then finally formation of new species. Okay, is this clear? Now I will explain. Now अब देखो ये points है, points just listen to the points and just listen to the examples, क्योंकि example से these points will become clear to you. Example is given there like giraffe. Okay, अब giraffe में उसने कहा है कि giraffe is a mammal जिसकी long neck है और long forelimbs हैं. अब उसने कहा it has been evolved from a deer like ancestor. ठीक है, जिराफ किससे इवॉल्व हुआ है, डियर लाइक एंसेस्टर से. अब कैसे हुआ, उसने कहा दिस एंसेस्टर हैपन टू लिव इन ए, उसने कहा ये जो एंसेस्टर थे ये एक बैरन प्लेस में रहते थे जहाँ पे लीव्स जो थे इनके खाने के लिए क्या था, लीव्स ऑफ द ट्रीज. ओके, सो दे हैव टू डिपेंड ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज.
सो उनको एफर्ट करना पड़ा, इट मेकिंग एन एफर्ट टू रीच द लीव्स। अर्लियर क्या था, देखो सिंपल चीज है कि पहले क्या था कि उनको जमीन पे खाना मिल रहा था, ग्राउंड में खाना मिल था, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन ग्राउंड में खाना खत्म हो गया, दे हैव टू डिपेंड ऑन द लीव्स। ठीक है, दे हैव टू डिपेंड ऑन द लीव्स। जब वो लीव्स पे डिपेंड हो तो डेफिनेटली उनको अपने अंदर चेंज लाना पड़ा। उन्होंने क्या चेंज लाया? In making an effort to reach the leaves, it continuously scratch its neck and forelimbs. उनको अपनी neck और forelimbs को scratch करना पड़ा। Are you getting my? अब देखो ये this example is related to your points. New need क्या थी? New need. What is the new? Yes, yes. Please mute yourself. All of you, please mute yourself. Now, just try to understand what is the new need. अब just relate this example with these postulates. First one is the new need. अब उस new need उसकी क्या थी कि वो environment में जहाँ रह रहा था उसको खाना मिल रहा था, but suddenly जब वहाँ पे खत्म हो जाएगा उस ग्राउंड में खाना, तो उसको डिपेंड रहना पड़ेगा ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। दिस इज अ न्यू नीड कि अब उसको कुछ तो अपने ऑर्गन में चेंज लाना पड़ा। उसने क्या चेंज लाया अपनी नेक में? सेकंड इज द सेकंड पॉइंट, रिलेट टू द सेकंड पॉइंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने क्या किया? मेकिंग एन एफर्ट टू रीच द लीव्स, उसने अपनी स्क्रैच और फोर लिम्स को स्क्रैच किया। दिस रिजल्ट इन स्लाइट इलोंगेशन ऑफ दीज पार्ट्स। अब उससे क्या हुआ कि उसके ये जो पार्ट्स हैं नेक और फोर लिम्स स्क्रैच हुए, इलोंगेट हुए। द इंक्रीज एक्वायर्ड इन वन जनरेशन वाज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो करेक्टर है वो ट्रांसमिट हुआ नेक्स्ट जनरेशन से, एंड दिस प्रोसेस आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन प्रोड्यूस द प्रेजेंट डे जिराफ विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स। Is this point clear? So इन पोस्टुलेट्स को रिलेट करो विद दिस एग्जांपल जिराफ के साथ। जिराफ में क्या था? न्यू नीड्स। फर्स्टली रिलेटेड विद द न्यू नीड क्या थी कि इन्वायरमेंट में खाना ग्राउंड में खत्म हो गया तो उसको डिपेंड रहना पड़ा लीव्स ऑफ द ट्रीज। जब वो ट्रीज पे डेफिनेटली उसको अपने अंदर चेंज लाना पड़ा। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, किस ऑर्गन का यूज करना पड़ा? अपनी लॉन्ग नेक को और फोर लिम्स को स्क्रैच करना पड़ा। दैट इज अ यूज ऑफ ऑर्गन। देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड। अब उसने कहा कि वो जो ट्रेड था वो फिर इनहेरिट हुआ नेक्स्ट वाली जनरेशन में, एंड एट लास्ट उसने कहा नंबर ऑफ जनरेशन के बाद हमें क्या मिला कि पहले एक जनरेशन में थोड़ी स्क्रैच हुई, दूसरी में ज्यादा स्क्रैच हुई, तो फाइनली हमें क्या मिला? अ प्रेजेंट डे जिराफ विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिप्स। इज दिस क्लियर? मैम यस यस मैम ये जो इलोंगेशन ऑफ नेक है मैम, ये एक्वायर्ड ट्रेट नहीं हुआ? डियर ये एक्वायर्ड ट्रेट हम वही तो पढ़ रहे हैं। उसने कहा लैमार्किज्म ने कहा था कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं इनहेरिट होते हैं, बट वो सही नहीं है। ओके, बिकॉज वी आर स्टडिंग द थ्योरी। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ दिस इज राइट, बिकॉज दीज आर द थ्योरीज। तो थ्योरीज ये डिस्कार्डेड थ्योरीज हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, लेकिन अब जब नेक्स्ट थ्योरीज में एंड में आप जब मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिट नहीं होते। सिर्फ जो आपके दूसरे ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, वही जो जीन्स में चेंजेस आते हैं वो इनहेरिट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये थ्योरीज है ना, तो थ्योरीज में जो भी उन्होंने कहा वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। ओके, नाउ जस्ट अब इसमें पॉइंट्स है ना। इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ क्या था? फर्स्ट में क्या था? विद शॉर्ट नेक इनकेपेबल ऑफ रीचिंग लीव। पहले एंसेस्टर थे जो लीव्स तक नहीं पहुंच सकते थे। सेकंड पॉइंट क्या है? नेक लेंथन्स अ लिटिल। अब ये नहीं कि एक दो दिन में हो गया या 2 साल में हो गया, ये मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये काम चलता है। ये नहीं कि एक दिन में पहले उसने छोटी की फिर बड़ी की। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। ओके, सो फर्स्ट इज द एंसेस्टर। फर्स्ट पॉइंट इसकी पूरी एवोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंसेस्टर विद शॉर्ट नेक इनकेपेबल ऑफ रीचिंग लीव्स। सेकंड पॉइंट, neck lengthens a little by scratching in an effort to reach leaves। ठीक है, नेक जो है वो स्ट्रेंथ लेंथन स्क्रैच करेगी। थर्ड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग्स विद स्लाइटली लॉन्गर नेक। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनकी भी थोड़ी सी लंबी नेक होगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट ऑफस्प्रिंग्स लेंथन नेक फर्दर बाय स्क्रैचिंग एज लीव्स फ्रॉम लोअर ब्रांचेस आर कंज्यूम्ड। अब जो लोअर ब्रांचेस से लीव खत्म हो गई तो उनको और ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोअर ब्रांचेस के लीव्स खत्म हो गए तो उनको और ज्यादा ऊपर जाना पड़ा। उससे क्या हुआ? और ज्यादा नेक जो है लॉन्ग होगी। सो व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? very long neck after a number of generations। Okay, so 5 points are clear to you? Yes, Yes, ma'am. okay, so this is the theory of Lamarckism, inheritance of। अब आपने एक एग्जांपल पढ़ी है। नाउ yes yes yes